Good afternoon, Lavanya. Are you able to hear me? Is my voice Yes, sir. clear? Okay. So, how is the condition of weather there in Gandhidham? Sir, it is windy. Okay. So, in online, we are having the class, but in offline, it would have been a holiday for at least 2 days. Good. So, let us finish this exercise. Now, which was the last question that we did in 4.2? 11. 11th. Okay. Can you tell me the page number? Just a minute. These are the properties. So only 2-3 questions are remaining. Yes, it is 4.2, question number 12. Let us solve question number 12. So here we go. We have question number 12. Just a minute. I'm not able to write. I don't know what is the problem. Acha, try to solve the question. There is some issue with my tablet. Yes, now it is working. So we have question number 12. So it is 1x and x squared, 1 and x, and then it is x squared and 1. And we need to solve this. Now, if you carefully see, then can I say in column wise or row wise? For example, it is 1x and x squared. Here also it is 1x and x squared. So if I add all these three, so the here my column will become 1 plus x square, and like this also 1 plus x square, it will be there. So what I will do, row number 1 I will change to row number 1 plus row number 2 plus row number 3. So row 2 will be as it is, which is x square 1 and x. Row 3 will be as it is, which is x square and 1. Now here 1 plus x square. So 1 plus x square. Here also it will be same, 1 plus x square. 1 plus x square. Here also 1 plus x square. So in the next step, you can take 1 plus x square as common. So you will get 1, 1, 1. And here I have x square 1 and x square
and 1. So I hope ये step आपको clear है. Now what I will try to do, ये जो 1 है, the moment I get 1 1 1, मैं इन दो 1 को 0 करने की कोशिश करूंगा so that expansion becomes easy. और ये करना easy है. So I will write like this, column 2 changes to column 2 minus column 1, and at the same time column 3 को भी मैं change करूंगा, column 3 minus column number 1. So दोनों साथ में करता हूं so that I can reduce one step. So 1 plus x square. First column will remain as it is, which is 1 x square and x. Now here it will be 1 minus 1, 0, 1 minus x square minus x. And here it is 1 minus 1, 0, x minus x square. And here it is 1 minus x. So now I can expand. Okay, so I can write like this, expanding. So when I expand 1 plus x square as it is outside. Now when I expand, सिर्फ यही बचेगा 1 and multiplied with this determinant. बाकी दो तो 0 है. So I will write like this into bracket. Now 1 multiplied with this, 1 multiplied with this will get multiplied. 1 minus x square and 1 minus x. So 1 minus x square into 1 minus x minus these two will get multiplied, which is x square minus x and x minus x square. Okay, so this is going to remain as it is, 1 plus x square. And in this bracket, look here, I can expand this. It is a square minus b square. Okay, so a minus b and a plus b. So I can expand like this. And 1 minus x was already there. Now here, look here. Here I have 1 minus x 2 times. Okay, so let me do one thing here. If I take x common, so it will be 1 minus x. So what I will do, I will change this sign. Look here, ये जो है इसको मैं साइन चेंज करूंगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर व्हाट कैन आई राइट? इफ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, सो रिवर्स हो जाएगा. इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर. यस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा. ओके, सो ये स्टेप में आपको ध्यान रखना है. मैं हाईलाइट कर रहा हूं व्हाट चेंज वी हैव डन, कि वी हैव टेकन माइनस कॉमन. सो ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. एंड फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन डू, ये भी सेम है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये भी एज इट इज होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस. नाउ यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स कॉमन, या फिर एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लीकेशन में है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स 2 बार है. So I can write like this, 1 minus x का स्क्वायर 1 plus x plus, इसमें से I can take x common, तो ये बन जाएगा 1 minus x, ना, x minus x square can be written as
x कॉमन 1 माइनस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये था ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इज ऑलरेडी देयर, तो प्लस ये हो जाएगा x का भी स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर। सो क्या कुछ अब कॉमन निकल सकता है? यस, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर and I have taken 1 minus x the whole square common, so इसमें से बचेगा 1 plus x and इसमें से बचेगा x square। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो बार स्प्लिट करूंगा, तो 1 plus x square into 1 minus x and यहाँ पर 1 minus x into 1 plus x square। अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूं। ओके, लुक, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या था? a क्यूब माइनस b क्यूब, इट इज 1 क्यूब माइनस x क्यूब। तो याद रखिए a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। सो ये जो आपने यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये जो है इट इज ऑल्सो द शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म है? 1 माइनस एक्स क्यूब का। सो अब आंसर मिल चुका है। 1 माइनस एक्स क्यूब दो बार मल्टीप्लीकेशन में है, तो वी कैन से दैट इट इज 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे का स्क्वायर। एंड व्हाट वाज आवर राइट साइड? इट वाज सेम, 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे का स्क्वायर। ओके, so we have got this answer. So raise your hand if you are clear about this. प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था वो मैं बताता हूँ कि व्हेन वी वर सॉल्विंग दिस, हमें सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना था कि x माइनस एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल दो। दिस स्टेप वाज इंपॉर्टेंट। वी कैन चेंज द साइन। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और हियर वी हैव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज करके वी कैन मेक बोथ द ब्रैकेट सिमिलर। सो उसका स्क्वायर बन गया, फिर एक्स कॉमन निकाला। हेलो, होगी ना फिर साइन चेंज। हाँ बोलिए। दूसरा जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो x माइनस एक्स का स्क्वायर है, दूसरा वाला सर जो प्लस वाला जहाँ पे ना आपने किया है जो वो हुआ कौन से हाईलाइट स्टेप हुआ है, में? प्लस वाला, प्लस वाली जो साइन है, नहीं सर इसके हाँ ऊपर हाँ, वाला। यस हाँ बराबर। सर, हम्म, दूसरा जो है इसमें सर उसकी भी तो होगी ना सर साइन नहीं चेंज। देखो, मैंने क्या किया है, ये है ना x हाँ माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा है। ओके, नाउ सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ना उसके आगे मैं माइनस साइन रख दूंगा। इफ आई टेक माइनस कॉमन तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बराबर। सो आई हैव डन, सिर्फ लिखा वैसे है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स पहले लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिखा। सो ये जो ब्रैकेट है उसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, इट मींस आगे माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस बाजू में आ जाएंगे तो इट विल बिकम प्लस। यस सर, पर सर जो उसके सर अगला वाला है उसमें भी तो आएगा ना वो इफेक्ट। नहीं, नेक्स्ट इसमें वाला नहीं जो है, आएगा, इसमें नहीं आएगा। सिर्फ यही आप एक ऐसे मान लिए कि मैं सिर्फ इसी ब्रैकेट के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ओके, जो ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, अब ये ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है जो माइनस साइन वाला है वो प्लस बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसकी जो इफेक्ट है वो सिर्फ यहां तक ही रहेगी।
जो मैंने यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ यहां तक रहेगी। ओके, सो यहां तक इफेक्ट रहेगी। अब क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक काम करता हूं, क्वेश्चन 13 मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूं। आई विल ऑल्सो शेयर द सॉल्यूशन। तो कोई स्टेप में अगर आपको क्या है प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14, वी हैव ए स्क्वायर प्लस 1, देन ए बी ए सी, then we have AB, then B square plus 1, then BC, then we have AC, BC, and then we have C square plus 1. Okay, now अब मैं ध्यान से देखो, मुझे इस तीनों में से ए कॉमन निकालना है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पर भी मेरे पास ए होना चाहिए। ओके, अगर इन सब में से मुझे बी कॉमन निकालना है तो यहां पर भी बी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू कि कॉलम नंबर 1 को ओके मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लाई कॉलम 1 विथ ए, ताकि मैं ए कॉमन निकाल सकूं, कॉलम 2 को बी से एंड कॉलम 3 को सी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट आई विल डू कि कॉलम नंबर 1 जो है, जिसको ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस ए, यहां पर बन जाएगा। अच्छा एक काम करता हूं, मुझे वैसे भी ए कॉमन निकालना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, ए आउटसाइड ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पर नीचे ए इंटू ए बी और नीचे ए इंटू ए सी। कॉलम नंबर 2 को बी से मल्टीप्लाई करना है, सो आई कैन राइट b into ab, then it will be b into b square plus 1, then it is just a minute. Okay, so here it will be b into bc and यहाँ पर I have to multiply with c, तो c into ac, c into bc and c into c square plus 1। अच्छा अब देखो क्या होगा, मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है तो आई ऑल्सो नीड टू डिवाइड। ओके, तभी ये प्रॉपरली मैच होगा। सो अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन हम निकाल सके। नाउ व्हाट आई विल डू से, अब देखिए मेरे पास ऐसे भी है ए, सो इसमें से भी मैं ए कॉमन निकाल सकता हूं। ओके, यहां पर मेरे पास बी है, सो यहां से मैं बी कॉमन निकाल सकता हूं एंड फ्रॉम दिस आई कैन टेक सी कॉमन। सो अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी कॉमन निकाल रहा हूं, नीचे ए बी सी वो ऑलरेडी देयर। सो रो वाइज अगर मैंने ए निकाल दिया तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 1, it is b square and it is c square। यहां पर मैंने b कॉमन निकाल दिया तो it will be a square एंड यहां पर b कॉमन निकल गया है तो it is b square plus 1 एंड यहां पर it will be c square एंड यहां से मैंने कॉमन निकाल दिया है c, so it is
a square, it is b square and it is c square plus 1. सो ये ABC तो कट हो जाएगा. अब यहां पर ध्यान से देखिए, हियर आई हैव a स्क्वायर, हियर ऑल्सो आई हैव a स्क्वायर. सो मैं कोशिश ये करूंगा कि एटलीस्ट कोई एक की वैल्यू 0 हो जाए. ये 2 0 अगर हो जाता है तो सबसे बेस्ट है. ओके, सो आई कैन राइट लाइक दिस कि रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 3. सो ये करने से इट विल बी लाइक दिस, रो नंबर 2 चेंज हो जाएगा. सो इट विल बी ए स्क्वायर. अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन हम इसमें देख सकते हैं बिफोर आई डू दैट. देखो, ये तीनों जो कॉलम्स है उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है. ये तीनों कॉलम में भी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 है. हियर ऑल्सो आई हैव 1. तो एक मुझे आइडिया मिली है. तो ये भी करने से पहले मैं क्या करूंगा कि कॉलम 1 को सेम बना देता हूं. यानी कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉलम 3. ऐसा हमने सीखा था. ओके, बाहर 1 हो जाएगा. सो इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहां पर भी वी विल हैव 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus c square. Here also we will have 1 plus a square plus b square plus c square. तीनों कॉलम को मैं ऐड करूंगा तो it will be like this. Second column and third column as it is, b square, c square, b square plus 1, c square, b square and c square plus 1. Okay, so अब इसमें से मैं ये कॉमन निकल सकता हूं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब देखो मेरा काम आसान हो गया. हियर आई विल हैव 1 1 1. ओके, तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1. अब मैं इन दो जीरो को इजीली डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1. कौन से स्टेप में? यहाँ पर हाँ, R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 करते तो 0 हाँ. आ जाता ना. R2 माइनस R1 में करता तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सॉरी, R2 माइनस R3. हाँ, तो मुझे यहाँ पे एक जीरो मिल जाता, फिर दूसरी बार मेहनत करनी पड़ती. ओके, तो कर सकते हैं, इश्यू नहीं है. लेकिन देखो, ये करने से क्या हो गया कि मुझे ये तीनों के तीन वैल्यू सेम मिल गई. इसमें से आई कैन मेक 1. अब मैं 2 स्टेप एक साथ कर सकता हूं. तो अगेन मेरा पर्पस सब हो जाएगा. यहां पर भी मुझे 0 मिल जाएगा और यहां पर भी 0 मिल जाएगा. गॉट दिस पॉइंट? तो इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टेप्स कैन डिफर. अब देखिए, यहां पर मेरा काम आसान हो गया. व्हाट आई कैन डू कि रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1. सो ये 0 हो जाएगा. एंड रो नंबर 3 चेंजेस टू रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1. सो यू गॉट दिस सिद्धि? तो आपने जैसे सोचा है वैसे भी आप आगे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ओके, स्टेप्स ओके सर. अलग हो सकते हैं. तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर. नाउ हियर रो 2 and 3 चेंज होगा. 1 will remain as it is. तो 1 b square c square and here it will be 1 minus 1 0, b square plus 1 minus b square. So 1, c square minus c square 0. Then column 3 minus column 1, 1 minus 1 0, b square minus b square 0, c square plus 1 minus c square, so 1. नाउ अब देखो, ये 2 0 आ गए ना, तो बहुत अच्छी बात है. अब मैं एक्सपांड कर सकता हूं. ओके, एक्सपांडिंग. नाउ अब मैं जब एक्सपांड करूंगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ये इसके साथ बचेगा. ओके,
क्योंकि ये बी स्क्वायर को एक्सपांड करोगे और ये सी स्क्वायर को व्हेन वी एक्सपांड, तो ये दो जीरो की वजह से वैल्यू विल बी जीरो। तो मैं पूरा नहीं लिखता हूं बिकॉज आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। एंड यहां पर 1 मैंने कॉमन निकाला, सॉरी मैं एक्सपांड करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 0। सो बेसिकली ये 1 ही है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके एक वैल्यू मुझे मिली है। एंड ये देखिए वी गॉट दिस राइट हैंड साइड, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 14 is over. Are you clear now? Okay. Now सिर्फ दो MCQ है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि if A is the square matrix of order 3 by 3, then determinant of K into A is equal to। Now अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कोई भी एक डिटर्मिनेंट हम करते हैं, लेट्स से A is equal to 1 2 1 1 1 2 3 1 1, लेट्स से कोई एक डिटर्मिनेंट कर दिया। एंड व्हाट दे से कि K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। नाउ यहां पर देखिए अगर 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है, सो वी हैव वन आइडेंटिटी कि कोई भी नंबर इनटू दैट मैट्रिक्स, कोई भी नंबर इनटू ए पूरे का डिटर्मिनेंट लोगे तो इट विल बी वो नंबर का पावर 3 इफ इट इज 3 by 3 का डिटर्मिनेंट। अब इसको देखो प्रूफ करते हैं। सो के की कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, लेट के इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ए पूरे का डिटर्मिनेंट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज के इंटू ए मैट्रिक्स जो है 1 2 1 1 1 2 3 1 1, ओके। सो के इंटू ए, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, ये ए एक मैट्रिक्स है, सो नंबर डबल कर दो, 2 4 2 2 2 4 and then 6 2 2, and we can find the value like this through expansion 2, then 2 2s are 4, मैं डायरेक्टली ये कर देता हूं, माइनस 2 4s are 8, देन ये 4 है, इट विल बी -4 इंटू 2 2s are 4 माइनस 6 4s are 24 and plus 2 into 2 2s are 4 minus 6 2s are 12. So it is 2 into -4 into -20 plus 2 into -8. So ये वैल्यू मिल जाएगी -8 plus 24 80 minus 16. So it is 80 minus 16 and 8 24. So ये बन जाएगा 56। यस, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या लिखा है कि के का क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो के हमने क्या अज्यूम किया था 2, तो 2 का क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने अज्यूम किया था, इट वाज 1 to 1, 1 1 2 एंड 3 1 1। देखते हैं वैल्यू सेम होती है कि नहीं। तो 2 का क्यूब इज 8 एंड इसकी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट की फाइंड करेंगे 1। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 - 2, देन ये जो 2 है उसके आगे नेगेटिव साइन, 1 - 6, देन +1 into 1 - 3। सो ऑलमोस्ट वी आर डन, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 into 1 - 2 ये हो जाएगा -1, ये -5 into -2 सो +10 एंड ये है -2 into 1 so it will be -2 so is equal to 8 into, आप देख सकते हो 10 - 3 is what 7। तो आप देख सकते हो कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल। कोई भी आप डिटर्मिनेंट में we can use this property। okay, so option is C। if 3/3 determinant is there, then कोई भी constant into A, the whole determinant will be constant का power 3 into determinant। okay, now which of the following is correct? Determinant is a square matrix। no, determinant and square matrix दोनों अलग अलग चीजें हैं। determinant is a number associated to matrix। ये बात बराबर है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, लेकिन पूरा सच नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बराबर है। ओके, सो डिटर्मिनेंट में 2/2, 3/3, 4/4 ऐसे ही होते हैं। इन अवर सिलेबस वी हैव 2/2 एंड 3/3। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट ए नंबर, but it is associated with a square matrix, so this statement is fully correct। okay, so with this we are able to complete this। अब हम index number start करेंगे from tomorrow। okay, चलिए, bye bye and try to solve question 13।